very good Sunday morning to you. Welcome to Kushi Ki Khabar, and let us now join Pastor Christopher Peter Kay of Word of God Church and Prayer Center in Sterling, Virginia, as he reveals the revelation of our Lord Jesus Christ, Part 1. खुशी की खबर के इस नए प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं. We are very thankful and happy that you are watching the program and you are sending your feedbacks, emails, phone calls, and we're thankful to God for allowing us to be on this channel on this beautiful Sunday morning in the month of August. आज हम खुदा के पाक कलाम में से from the book of Revelation, मुकाशवा की किताब में से देखेंगे Revelation of the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का मुकाशवा, the revelation of the Lord Jesus Christ. और let us read from the word of God. आइए हम किताब मुक़द्दस में से पढ़ते हैं. मैं उर्दू में पढ़ूंगा. If you have your Bible in English, you can go to Revelation chapter 1, verse 13. I'll read from verse 12 so you can understand more. मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चरागदान देखे. उन चरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पाँव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था. उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानंद सफ़ेद थे. उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थीं. उसके पाँव उस खालिस पीतल के थे जो भट्टी में तपाया गया हो. उसकी आवाज़ ज़ोर के पानी की सी थी. उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक 2-धारी तेज़ तलवार निकलती थी. और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेज़ी के वक्त आफताब. जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और ज़िंदा हूँ. मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद ज़िंदा रहूँगा और मौत और आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं. खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है. We have read now from the word of God, Revelation chapter 1 verse 12 to verses 18, and verse 17 says, and when I saw him, John, who is the writer of this revelation of the Lord Jesus Christ, John was in a situation in an island of Patmos. The island of Patmos is an island where those criminals who were extremely dangerous, they were put into that island and they will die there because there was no way to go to that island. And that island was, when John was there, it was filled with the bones, हड्डियाँ थी, जानवर थे, there were wild animals there, snakes and scorpions were there, and there was no one living on that island. So उस आइलैंड पर कोई भी नहीं था. और जॉन यूहन्ना जो यीशु मसीह का शागिर्द था, John the disciple of the Lord Jesus Christ, he was put into prison there. That was a prison in the Roman Empire. John, why he went there? Because John escaped all the means of death. The emperor tried to kill him several times. He was unable to kill John. The last time John was in a pot, in a boiling pot with oil inside, and John was thrown in the pot, a big pot, जैसे हमारी एक बड़ी देग होती है उसके अंदर तेल डाल देते हैं, and the boiling oil could not burn John. So the emperor was afraid. बादशाह डर गया कि ये क्या है, ये जादूगर है, क्या है, इसको कुछ मरता ही नहीं है, इसको उस आइलैंड पे डाल दो. जब उसको उस आइलैंड में डाला, and it was on Sunday when he got this revelation of the Lord Jesus Christ. Now here he sees a different Jesus. यहाँ पर वो एक different Jesus को देख रहा है. It is not the Jesus when he saw the last time he met Jesus in the body. At that time Jesus was on the cross, hanging, crucified, and that was his last encounter, physical encounter with the Lord Jesus Christ, John's. After that one, when Jesus rose again on the 3rd day, जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, John saw Jesus, and when they were sitting together, and Jesus, every door was closed because the Jewish people were trying to kill the disciple of the Lord Jesus Christ, and John उस room में था, and Jesus came in that room. So John saw that Jesus, that was a spiritual Jesus, not a physical Jesus, not with a body. But now John is seeing a different Jesus. What he sees here is a very unique revelation of the Lord Jesus Christ, which is only given
to John. That's what the Revelation, the book of Revelation means. The word Revelation in the Greek means apocalypse, which means to reveal the veil, to reveal which is behind the veil, parda hatana, something which is behind the veil. So that's the word apocalypse means. So the book of Revelation ये एक अजीब किताब है. This is a book of prophecy, the last book of the Bible, and it's very difficult to understand for some people, but it's very easy. It's very, very easy. There are symbolic languages, there are different kinds of animals and different kind of monsters are are revealed in this book, but those are all symbolics. They are symbols of some things. And this book, the last book of the Bible, the Revelation, shows us what is going to happen on the last end time. In the Old Testament of the Bible, Bible के पुराने हाथ में, we have the book of Daniel. I'll be giving you the study of the book of Daniel whenever God permits. That book, Daniel, is a history now, but when the book of Daniel was written, it was not history. The events which God showed to Daniel, the 4 major kingdoms of the world, even they did not happen at that time. Daniel wrote those prophecies and he died, and all those, one of the kingdom was in the day of Daniel, but other 3 kingdoms came after Daniel. So the Bible reveals what is happening before it happens. There is no other book which can tell you what's going to happen tomorrow. That's amazing, that how God revealed to Daniel the 4 major kingdoms of the world. Those kingdoms are the Babylonian kingdom and the Medo-Persian kingdom, the Greek kingdom. Bible mentioned about the great conqueror, Alexander the Great, before Alexander was born. Daniel is writing about Alexander, and he is not knowing who is Alexander, but he writes about Alexander. And Alexander is born after long time of Daniel. But God revealed to Daniel the kingdom, the Greek kingdom, which will conquer the whole world. Then God reveals to Daniel the Roman Empire, which was never there. So in the same manner, when we come to the Old Testament, the last book of the Old Testament reveals to us what the events which are happening, going to happen in the end time. So I'm not going to share those ones now, but let me share about the Lord Jesus Christ, the description of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह को जब यूहन्ना ने देखा, उसके शागिर्द ने, in a spiritual way, in a vision, is a totally different. यहाँ पर लिखा है, जब मैंने उसे देखा, उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन, बल्कि बर्फ की मानिंद सफ़ेद थे. His hair was white as snow. He was having white hair. Jesus Christ, when John saw him in a spiritual vision, he is not the same Lord Jesus Christ which used to have a brown or golden kind of hair. When John sees him in this vision, in this revelation, Jesus Christ is having white hair. And then the second thing, उसकी आंखें आग के शोला की मान थी. The Bible describes the eyes of the Lord Jesus Christ were brown. But now John sees the eyes of the Lord Jesus Christ are like fiery flames. Then number 3, उसके पाँव खालिस पीतल की मान थे. The feet of the Lord Jesus Christ were like brass. They were not the same feet which used to walk on the water of Galilee when Jesus Christ walked on the water. Then उसकी आवाज़ जोर के पानियों की सी थी. His sound was different sound. See, it says sound of many waters, बहुत सारे पानियों की शोर की आवाज़ थी. उसके मुंह से 2-धारी तेज तलवार निकलती थी. Out of his mouth was coming out a 2-edged sword. ये एक अजीब सी तस्वीर जॉन देख रहा है. उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे आफताब अपने जोर पर. His face was shining, his countenance was shining like the sun is shining in his strength. So what does this mean? हम 2 पार्ट्स में इस सेशन को देखेंगे. So please be following up with us. अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप गूगल पे जा सकते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन टाइप करके रेवलेशन देख सकते हैं, जो कुछ भी आपकी लैंग्वेज है. इफ यू आर वाचिंग इन
Arabic language, you have Arabic Bible. Every Bible is available on Google. So you just go and search and you can follow up with me. And if you want to know more, I'm just doing a brief description here. If you want to know more, अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं, ज़्यादा तो समझना है, तो सानू कॉल करो, नंबर स्क्रीन दे उत्ते आ रहा है, इस नंबर ते कॉल करोगे, मैं तुहानू दसांगा ਇਹਦੇ बारे च बहुत कुछ जो कि यीशु मसीह दा रेवलेशन है, मुकाशवा है. सो लेट्स सी, हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या ये चीज़ है जो जॉन देख रहा है, और हम जब इसे पढ़ते हैं तो क्या समझ आती है कि किस व्हाट इट मीन्स. वर्स 13, उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीनाबंद सीना पर बांधे हुए था. And in the midst of the 7 candlestick, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot and girt about the paps with a golden girdle. ये उसकी एक्सप्लेनेशन है. यीशु मसीह ने जो लिबास पहना हुआ है उस वक़्त, उसने एक सीनाबंद पहना हुआ है, गर्डल है, एक बेल्ट पहना हुआ है, मगर वो बेल्ट जो उसकी कमर पर नहीं बल्कि यहाँ पर है. अगर आपने कभी अरब कंट्रीज़ में गए हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि अरब जो हॉर्स राइडर्स होते हैं वो एक बेल्ट पहनते हैं, वो यहाँ पर होते हैं बेल्ट. अगर आपने कभी नहीं देखा तो जस्ट सर्च करें फ़ोटोज़ में, गूगल में जाकर, तो आपको अरब हॉर्स राइडर्स के बेल्ट मिलेंगे जो वो यहाँ पर पहनते हैं, जो मिडिल ईस्टर्न लोग होते हैं. सो वो बेल्ट जीसस ने पहना हुआ है. लेकिन जो बेल्ट जो हम यहाँ पर पहनते हैं, जो पहले ज़माने में लोग, जैसे आपने देखा वेट लिफ्टर्स बेल्ट पहनते हैं, इसका मतलब है वीकनेस, वेट उठाने के लिए. बट जीसस क्राइस्ट इज नॉट वीक, सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट हैविंग द बेल्ट हियर, ही इज हैविंग द बेल्ट हियर. सीने पे उसने बेल्ट बांधा हुआ है. कमर पर बेल्ट बांधने का क्या, व्हाट इज द रीजन व्हाई द बेल्ट इज हियर, यहाँ कमर पर क्यों नहीं है बेल्ट? इसका जवाब बाइबल में मिलता है हमें. आइज़ाया, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 में इट इज सेड कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी, द किंगडम्स शैल बी ऑन हिज शोल्डर्स. इसलिए यीशु ने बेल्ट कमर पर नहीं बांधा बल्कि यहाँ सीने पर बांधा है कि किंगडम्स, द लिफ्टिंग अप ऑफ द किंगडम्स. वो जो बेल्ट यहाँ पर बांधते थे वो बादशाह होते हैं, किंग्स. सो दैट सिंबलाइजेस हिम एज किंग, उसे बादशाह. जब सेकंड आमद में जीसस क्राइस्ट आएगा, व्हेन ही इज कमिंग इन द सेकंड कमिंग, जॉन डिस्क्राइब करा हिज हेयर्स आर वाइट, उसके बाल जो है सफेद हैं, लाइक वूल. आपने कभी इंडियन मूवीज देखी, हिंदी मूवीज, जज साहब को देखा है? जज साहब के जो वाइट होते हैं बाल, यहां पर जीसस क्राइस्ट जब सेकंड आमद में अपनी आएंगे, जब दूसरी आमद में आएंगे, व्हेन ही इज कमिंग इन द सेकंड टाइम, ही विल बी अ जज, ही विल जज द वर्ल्ड, ही विल बी द किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स. इसका सर और बाल बिल्कुल सफेद है, जिसका यह मतलब यह है कि यीशु मसीह जो है, ही इज एंशिएंट ऑफ द डेज. जब हम बूढ़े हो जाते हैं हमारे बाल सफेद हो जाते हैं. लेकिन जो एक जज होता है, विच इज अ सिंबल ऑफ जस्टिस, जीसस क्राइस्ट जब आएंगे वो इस दुनिया का इंसाफ करेंगे. So that's why John is seeing him as white hair person. सफेद बाल हैं उसके. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इज अनचेंजेबल, वो ला तब्दील खुदा है, अब तक है. अगर हम पुराने जमाने की तारीख को देखें, वी सी द एंशिएंट हिस्ट्री. सो जो जज था, ही यूज्ड टू वेयर विग, एक विग पहना करते थे जो कि वाइट कलर की होती है. अभी भी अगर आप पुरानी फिल्म्स देखें तो उसमें जज ने वाइट विग पहनी होती है. दैट सिंबलाइज जस्टिस, इंसाफ करने वाला, आखिरी फैसला देने वाला शख्स. एट द एंड जीसस क्राइस्ट विल बी द पर्सन हु विल बी जजिंग द होल वर्ल्ड. सो एंड द जज सिंबलाइजेस द हाईएस्ट अथॉरिटी. यीशु मसीह के पास आखिरी अथॉरिटी है. जीसस क्राइस्ट हैज द फाइनल अथॉरिटी. सो जो सफेद बाल है इस आयत में, वो हमने पढ़ा कि वो एक जज है, मुनसिफ है, इंसाफ करने वाला है. ही विल बी कमिंग एज अ जज, ही विल बी जजिंग द वर्ल्ड. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स, अगर दुनिया में आपके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, लोग आपको अच्छा नहीं समझते, लोग आपको गालियां देते हैं, दे अब्यूज यू, दे एक्यूज यू, दे ब्लेम ऑन यू एंड दे रिजेक्ट यू, डोंट वरी. The day is coming that those people who are dealing bad with you, they will be judged. एक दिन ऐसा आने वाला है, वो लोग जो तुहाडा बुरा सलूक कर देने, यीशु मसीह तुहाडा इंसाफ करेगा, तुहानू पूरा इंसाफ मुहैया करेगा.
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਨਸਿਫ ਹੈ। So those people who are not dealing rightly with you, they will be judged. अगर आप किसी जज के सामने कभी खड़े हुए हैं तो आपको पता है कि हाउ फेयरफुल यू आर, आप कितने डर में होते हैं कि जज साहब ना जाने क्या फैसला करेंगे, what the judge will decide, what will be my verdict, what will be the final sentence from the judge. Even the judge can sign an order to hang you, order for your death. यीशु मसीह के पास इख्तियार है, उसने कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। He has all the authority and power in heaven and upon this earth. जब वो आएगा तो he is a judge, वो जज की तरह आ रहा है, एक जज बन के आ रहा है। हम सबको उसके सामने खड़ा होना है। हम सब ने अपने गलत कामों का, जो हमने अच्छे काम किए या बुरे काम किए, उसके सामने जवाब देना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि he will be coming to judge the whole world. दूसरी जो अपीयरेंस थी यीशु मसीह की, उसने देखा जॉन ने his head and his eyes were as a flame of fire. उसकी आंखों से आग के शोले निकलते थे, उसकी आंखें आग के शोले की मानते। What does this means? The flame of fire. Eyes are flame of fire. What that means? हमने बहुत सारी लेजर बीम के बारे में सुना है, एक्सरेज के बारे में सुना है। There are a lot of cosmetic rays and all those stuff, we have heard about them. लेकिन ये जो flame of fire, यीशु मसीह की आंखों को, this symbol, what symbolizes this one? ये flame of fire जो कि जीसस की आंखों से आ रहे हैं, वो आपके दिल के अंदर जाते हैं। वो जान लेता है कि आपके दिल के अंदर क्या है। It penetrates deep into the heart. जो उसकी आंखों से आग के शोले निकलने, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट के सामने सब चीजें खुली बेपर्दा है। हम खुदा से कुछ भी छुपा नहीं सकते। We cannot hide anything from God. सब चीजें उसके सामने खुली बेपर्दा है। एक तो वो जज है, सिंबलाइजिंग व्हाइट बाल हमने देखे, और दूसरा उसकी आंखों से कोई छुप नहीं सकता। बाइबल में लिखा है कि जो काम तुम अंधेरी कोठरी में करोगे, छुप कर करोगे, गॉड नोज इट, खुदा जानता है कि आप अपने बच्चों से क्या कर रहे हैं, आप अपनी वाइफ से छुप कर क्या कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड से छुप कर, व्हाट आर यू डूइंग इन योर हिडन प्लेसेस, गॉड नोज एवरीथिंग विच यू डू। सो उसकी आंखों से जो है वो फ्लेम ऑफ फायर्स निकल रहे हैं। जब पहले दुनिया में यीशु मसीह था तो उसकी आंखें आंसू बहाती थी। ही क्राइड, ही वेप्ट फॉर पीपल। जब वो लाजरस की कब्र पर गया वो रोया, लेकिन अब उसकी आंखें आग के शोलों की मानंद हैं। जब वो इस दुनिया में था वो रोता था, दुआ करता था, लेकिन जब हम when we accept the Lord Jesus Christ as our personal Savior, the one who saves us, then He knows the thoughts of our heart. हमारे दिल की सोचों का पता है, साढ़े दिल नूं जानदा, दिलां नूं ख्यालां नूं जानदा। Number 3, and his feet like unto the fine brass. उसका जो पांव थे वो खालिस पीतल की मान थे। पीतल से क्या मुराद है? पीतल से मुराद है जस्टिस, जस्टिफिकेशन, अदालत। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने किसी की अदालत नहीं की, लेकिन अब वो अदालत का तख्त लगाएगा। There's gonna be a throne of judgment. वो अदालत करेगा। Brass means justifications, just as I have never sinned. इससे पहले कि हम इस नेक्स्ट सेशन में जाएं, जो एक्सप्लेनेशन है, I will be explaining it to in the next episode of this program. But now let me just pray for you. खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तेरा हाथ इन पर मांगते हैं, तेरी ब्लेसिंग्स इनके लिए चाहते हैं। इनकी ज़िंदगियों की सारी समस्याएं, हर तरह की मुश्किल, दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, बीमारी,
अभी और इसी वक्त तेरे यीशु नाम से, द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, खत्म हो जाए, रिलेशनशिप्स रिस्टोर हो जाए, बॉडीज रिकवर हो जाए, डिजीज चली जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ओवर हो जाए, फैमिली प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। अपने लोगों को बरकत दे, टच कर, घरों में, हॉस्पिटल्स में, जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब पर। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुना है, यीशु के नाम में, आमीन। वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया टू वॉच दिस प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम 'ਚ फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। शुक्रिया। खुशी की खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। और अगर आपको कोई दुआ की ज़रूरत है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें और हम आपको फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी चैनल पे अगले संडे को। खुदा हाफिज़। यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे, यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे। तेरे विच जीवांगे, तेरे विच मरांगे, तेरे विच जीवांगे, तेरे विच मरांगे। यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे, यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे। तेरे विच जीवांगे, तेरे विच मरांगे, तेरे विच जीवांगे, तेरे विच मरांगे। यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे, यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे। अब दी हयात वाली रायो वखावेगा, अब दी हयात वाली रायो वखावेगा। सोने दियां सड़कां ते सानू वो चलावेगा, सोने दियां सड़कां ते सानू वो चलावेगा। बाप दे सज्जे हथ सानू बिठावेगा, बाप दे सज्जे हथ सानू बिठावेगा। सिर उते ताज नाले जिंदगी दा पावेगा, सिर उते ताज नाले जिंदगी दा पावेगा। उथे कुछ होर नहीं, उथे कुछ होर नहीं। यसु यसु करांगे, उथे कुछ होर नहीं। यसु यसु करांगे, तेरे विच जीवांगे, तेरे विच मरांगे, तेरे विच जीवांगे, तेरे विच मरांगे। यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे, यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे। बाप ते बेटे दा
ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਦਾ ਅਬਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਦਾ ਅਬਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਪਿਆਸਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। खुदा ने सी बनाया यीशु दे नाम तो एक ही पल विच तेरियां मुश्किलां मुका देगा सदा।